A very good morning, students. Welcome to my new video. In this video we are going to study of fourth lesson from history, tribal communities and colonialism. So you should open your page number 32 from your textbook. Okay, there are some words and their meanings. We have to understand the meanings of these words here. First word, Adivasi, means tribal people. You know what are tribal people? Means in earlier period there were some group of peoples were lived in forest area, okay, and these people were called the tribal people, okay. These are Adivasis. Now next word is Banjaras. What is mean by Banjaras? A nomadic tribe of India. You know nomadic tribe means some people, some group of people were moved from one place to another place for earning, okay. These people were called the nomadic tribes, okay, and these people are called Banjaras. Then Bedbegri. Next word is here Bedbegri, means forced work without payment. In earlier period there were some powerful people were forced to poor people for working without payment, okay. That is called the Bedbegri, means कुछ powerful लोग कुछ पुअर लोगों को फोर्सफुली वर्क करने के लिए कहते थे विदाउट पेमेंट, ओके. दैट इज कॉल्ड बेदबेगरी. देन नेक्स्ट वर्ड इज योर भिल. भिल मीन्स अ ट्राइब इनहैबिटिंग द हिल्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडिया. जो कम्युनिटीज़ वेस्ट सेंट्रल इंडिया के हिल्स पे रहती है उसे हम बोलेंगे भिल्स, ओके. कम्युनिटीज़ मीन्स दैट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, ओके. ट्राइब्स भी बोल सकते हैं हम इसे, क्लैन भी बोल सकते हैं, ओके. देन नेक्स्ट इज हियर दिकुज, मीन्स all outsiders who belong to non-tribal communities. What is mean by Dikus? जो non-tribal communities है थे, okay, that is called the Dikus. Then ethnic means connected with or belonging to a nation or people that share a cultural traditions. Ethnic means belonging to a particular religion, ओके. जो लोग किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग रहते थे उसे हम बोलेंगे एथनिक, ओके. देन हुल. हुल मीन्स रिवॉल्ट बाय संथाल्स. जो संथाल्स कम्युनिटी थी उन्होंने कुछ रिवॉल्ट यहाँ पे किए थे उसे हम बोलेंगे हुल्स. देन ठेकेदार मीन्स a person who undertakes a provide labors or material to do a job. इसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे, ओके, ठेकेदार. Got it? Now come to the lesson. India is a land of grand cultural coexistence and fusion of people of diverse ethnic stocks. And you know in our India there are diverse people, okay. There is a diversity in our India, means different people living gatherly, okay. Different religion, different caste, different culture, okay. All things are different in our India of people, okay. Many ethnic groups migrated during different periods and settled in different areas across the Indian subcontinent. And in earlier period there were many ethnic groups, मीन्स जो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग थे, ऐसे कुछ ग्रुप्स यहाँ पे माइग्रेट होते गए ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग पीरियड्स में, ओके. माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अर्निंग, फॉर सेटलमेंट ऑल्सो, ओके. एंड दे सेटल्ड इन डिफरेंट एरियाज. एंड ये जो ग्रुप वहाँ पे मूव होते थे, these groups were settled in different areas across the Indian subcontinent. You know subcontinent means South Asia,
Okay, these part divided by the mountains hills from Central Asia. Okay, जो एशिया से माउंटेन्स हिल्स एंड रिवर्स से डिवाइड हो चुका है जो एरिया, उसे हम बोलेंगे साउथ एशिया. ओके, एंड दैट साउथ एशिया इज अ सब कॉन्टिनेंट. गॉट इट? दैट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. Prior to their arrival, several other communities were already living in this country. And before these, means इसके पहले कुछ अदर कम्युनिटीज भी यहाँ पे ऑलरेडी रहती थी. ओके, इन आवर कंट्री. मीन्स ये जो बाहर से आई हुई कुछ कम्युनिटीज थी, ये अलग अलग एरिया में आके सेटल्ड हो चुकी, और इनके पहले भी कुछ कम्युनिटीज यहाँ पे सेटल्ड थी. ओके, इन आवर कंट्री. इन मॉडर्न parlance, for all such communities we use the term tribal और आदिवासीज. और ये जो सेटल्ड ग्रुप्स थे, सेटल्ड कम्युनिटीज थी इन आवर इंडिया, these communities are called the tribals or adivasis. Okay, these communities had their own system of administration of justice. मीन्स ये जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे थी, इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था. अगर कहीं पे भी क्राइम होता है तो वो उनके सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे जस्टिस दिया करते थे, उन्हें जस्टिस मिला करता था. ओके, एंड दिस कम्युनिटी हैड देयर ओन सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथा, जो भी वो वहाँ पे वर्क करते थे, ये सभी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिसेस में. ओके, एंड लाइफस्टाइल, देयर वर डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑफ दिस पीपल. ओके, इनका ये जो भी लाइफस्टाइल था ये यूनिक था, अलग था. ओके, दे रिसाइडेड इन रिमोट inaccessible highlands and desolate forest. और ये कहाँ पे रहा करते थे? स्पेशली दूर एरिया में. ओके, रिमोट मीन्स दूर. inaccessible highlands means specially on mountains, on hills. Okay, and desolate forest, and जो फॉरेस्ट रहते थे यहाँ पे ये लोग स्पेशली रहा करते थे. With the advent of the British, the situation underwent a dynamic change. And जहाँ पे ब्रिटिश एंटर हुए अपने इंडिया में, during this period there were some changes in their life. Okay, जो भी कम्युनिटीज़ थी ये इनका जो भी लाइफस्टाइल था ये पूरा चेंज हो चुका था, बिकॉज ब्रिटिश अप्लाइड सम पॉलिसीज़ in our India. Okay, there were different policies used by British, and that's why there were some changes in the life of these communities. Okay, you will read in this chapter what the lifestyle of tribals was, how it was affected by British rule, and what the responses of tribal were towards the changes. And in this lesson we have to study about the lifestyle of tribals, कि कैसे इनका लाइफस्टाइल था, एंड जैसे ही ब्रिटिश एंटर हुए इंडिया में और उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पे यूज़ की उसकी वजह से इनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता गया, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है ये लेसन में. एंड जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ यूज़ की, जो भी रूल लगाए गए, इसका रिस्पॉन्स ट्राइबल्स पीपल ने कैसे दिया, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ. इन इंडिया देयर आर अप्रोक्सीमेटली 67.7 million आदिवासीज. This term literally means original people or inhabitants of the land. और इससे ये जो आदिवासीज यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे है, ये ओरिजिनल पीपल है अपने इंडिया के. ओके, मीन्स इंडिया में ये पहले से ही रहते आए हैं. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द ट्राइबल हिस्ट्री आर ballads and folklore.
which are transferred orally from one generation to the other. And there are important sources of tribal history. sources जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उसे हम बोलेंगे sources. And which are the sources of tribal history? Ballads means songs. Okay. Folklore means stories. ओके तो कुछ स्टोरीज, कुछ सॉन्ग्स, ये जो भी ट्राइबल पीपल थे इनके सॉन्ग्स रहते थे, स्टोरीज रहती थी, और ये ओरली वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली ट्रांसफ़र होते गए. ओके. गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इंडिविजुअल पीजेंट्स पेटिशंस, administrative proceedings, inquiry commission reports and their judgments also serve as important sources of tribal history of India. And there are some government documents also. Okay. And कुछ individual peasants petitions है. Petitions means notes. Okay. Administrative proceedings, inquiry commission reports, ये सभी से हमें ट्राइबल हिस्ट्री पता चलती है अपने इंडिया की. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस. इन प्री कॉलोनियल एरा ट्राइबल कम्युनिटीज inhabited the forest and hilly areas. And before the British period, there were tribal communities lived in the forest and जनरली हिली एरियाज. ओके. कहाँ पे रहते थे ये जो कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ बिफोर कॉलोनियल पीरियड मीन्स ब्रिटिश आने के पहले ये फॉरेस्ट में रहते थे या हिली एरियाज में रहते थे. ओके. ट्राइबल सोसाइटीज डिड नॉट हैव रिगिड सोशल डिविजन्स अकिन्स टू अदर कम्युनिटीज़. एंड ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल पीपल थे, इनके जो ग्रुप थे, कम्युनिटीज़ थी, यहाँ पे डिवीज़न नहीं था जैसे हमारे सोसाइटी में डिवीज़न था, मीन्स कास्ट लैडर थी. वैसे इनकी जो सोसाइटी थी, इनकी जो कम्युनिटीज़ थी, यहाँ पे डिवीज़न नहीं था. इनफैक्ट दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी. और ये किस पे बिलीव करते थे? इक्वालिटी पे. इन देयर कम्युनिटी, इन देयर सोसाइटी देयर वर इक्वालिटी. ओके. ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्स ओन लैंड. हर एक मेंबर्स की अपनी लैंड रहती थी खुद की. ओके. दे लेड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल. और उनका लाइफस्टाइल कैसा था? नोमैडिक. यू नो नोमैडिक मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग फॉर अर्निंग. ओके. Hunting animals and gatherings forest produce was their primary occupation. And which were the occupations of these people? Occupations means हम बोलेंगे इसे वर्क फॉर अर्निंग. ओके. अर्निंग के लिए कुछ काम धंधा व्यवसाय किया जाता है, उसे हम बोलेंगे ऑक्यूपेशन. ओके. तो विच वर द ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल? द प्राइमरी ऑक्यूपेशन hunting animals and gathering forest produce. For instance, Baigas of central India and Khonds of Odisha habitually went on collective hunts and fishing, as well as collected edible fruits and roots. And there is example of some communities. Okay. Baigas of central India, सेंट्रल इंडिया में जो बैगास कम्युनिटीज़ थी, एंड ओडिशा में जो खोंड्स थे, ये कलेक्टिवली हंट्स करते थे. ओके. जो शिकार थी एनिमल्स की, ये कलेक्टिव करते थे. एंड फिशिंग ऑल्सो, एज वेल एज कलेक्टेड एडिबल फ्रूट्स. जो फ्रूट्स रहते थे ये भी ये यहाँ पे कलेक्ट करते थे एक साथ ग्रुपली. ओके. एंड रूट्स ऑल्सो. Besides, they also used the forest produce for medicinal purpose. And इसके साथ ये जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे. Many like the one Gujars of Punjab hills, the Lamdis of Andhra Pradesh, the Gadis of Himachal Pradesh, and the Bakkarwals of the Kashmir practiced pastoralism.
What is mean by pastoralism? Means एनिमल्स हस्बेंडरी मीन्स ये जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे थी ये सभी अपने पास एनिमल्स रखते थे. ओके. Those tribals inhabiting hilly and forested region of northeast and central India were engaged in shifting और zoom cultivation. जो भी ट्राइबल्स, जो भी कम्युनिटीज़ हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन में रहती थी नॉर्थ ईस्ट में एंड सेंट्रल इंडिया में, ये सभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एंगेज थे. ओके. शिफ्टिंग और जूम कल्टीवेशन मीन्स अगर कोई प्लेस है वहाँ पे अगर फार्मिंग की जाती है तो आफ्टर फार्मिंग ये जो प्लेस है ये छोड़ दी जाती है और वो ये लोग दूसरी प्लेस पे कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे. उसे हम बोलेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन. ओके. टू अलाउ द सन टू रीच द ग्राउंड द कल्टिवेटर्स बर्nt द वेजिटेशन ऑन लैंड एंड कट द ट्री टॉप्स. एंड जो भी सनरेज थे, डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से सनरेज सीधे ग्राउंड पे लैंड पे नहीं जाते हैं इन डेंस फॉरेस्ट. ओके. तो उसके लिए क्या करते थे ये लोग, जो ट्री टॉप्स थे वो काटते थे और जो लैंड थी वहाँ पे ये बर्nt किया करते थे. ओके. जो ट्री टॉप्स काटे हुए जो भी वेजिटेशन था ये यहाँ पे बर्न किया जाता था. They used the ash to fertilize the land and scattered the seeds on the land furrowed by a hoe. And ये जो भी बर्न किया हुआ वेजिटेशन रहता था, मीन्स जो भी ऐश रहती थी ये लैंड पे स्प्रेड की जाती थी और वहाँ पे जो भी सीड्स है वो बोए जाते थे. ओके. एंड ऐश क्यों यहाँ पे स्प्रेड की जाती थी, उसकी वजह से जो भी फर्टिलिटी है सॉइल की ये इंक्रीज़ होती है. ओके. तो इसकी वजह से ये जो भी सॉइल वहाँ पे रहती थी लैंड पे उसमें ऐश मिक्स किया करते थे और फर्टिलिटी इंक्रीज़ किया करते थे सॉइल की. ओके. आफ्टर द हार्वेस्ट लैंड वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स. और एक बार अगर वहाँ पे फार्मिंग होती है ये लैंड ये छोड़ देते थे और दूसरी जगह पे फार्मिंग करते थे. ओके. बिसाइड्स some tribal groups did odd jobs like carrying loads, constructing roads and working in the fields of peasants. And कुछ जो ट्राइबल्स थे, कुछ ग्रुप्स थे ट्राइबल्स के, ये एनिमल्स हस्बेंडरी करते थे. कुछ लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल थे, फार्मर्स थे. सम पीपल्स वर did odd jobs. Okay. Besides, some tribal groups did odd jobs like carrying loads. Means loads वो carry करते थे. Constructing roads construct करते थे. And working in fields of peasants. कोई अगर फार्मर्स की फार्म है तो वहाँ पे भी कुछ ट्राइबल वर्क किया करते थे. ओके. द ट्राइबल पीपल मोस्टली bartered their valuable forest produce for essential commodities. एंड जो ट्राइबल थे ये ज़्यादा से ज़्यादा बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे. मीन्स जो भी वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनके पास रहता था इसेंशियल कॉमोडिटीज़ के लिए ये वहाँ पे बार्टर किया करते थे. बार्टर मीन्स एक्सचेंज द गुड्स. कॉमोडिटीज़ मीन्स जो थिंग्स सरवाइव के लिए ज़रूरी रहती है, डेली नीड्स भी हम इसे कह सकते हैं. ओके. इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो ये जो ट्राइबल्स थे ये अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता था, वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक्सचेंज किया करते थे फॉर इसेंशियल कॉमोडिटीज़. जो इसेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट, जो भी ज़रूरी गुड्स वहाँ पे चाहिए थे, इसके लिए ये यहाँ पे एक्सचेंज किया करते थे. अपने थिंग्स दूसरे को देके दूसरे के जो भी गुड्स थे वो लिया करते थे. एट टाइम्स दे परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ट्रेडर्स. और कुछ गुड्स वो ट्रेडर्स से भी खरीदा करते थे. ओके. ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल्स.
And during the colonial period, during the British period, British used different policies in our India. They formed different rules for Indians. Okay. एंड जो भी रूल्स, जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पे यूज़ की थी, उसके बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट यहाँ पे हुए थे अलग अलग कम्युनिटीज़ पे. ओके. तो ये जो भी रूल्स यहाँ पे यूज़ हुए, उसके ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हुए ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. Many tribal areas came under the British influence when the latter expanded. The tribals were significantly affected by the British rule. और ये जो भी ट्राइबल्स थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ये बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल. ओके. क्रिश्चियन मिशनरीज, मनी लेंडर्स, ठेकेदार्स, प्लांटर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड जमींदार्स encroached upon tribal habitations which resulted in a number of problems. और ये जो भी पावरफुल पर्सन्स यहाँ पे थे, पावरफुल पीपल यहाँ पे थे, इन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, इनके पूरे राइट्स छीन लिए थे. ओके. तो उसका जो भी रिज़ल्ट यहाँ पे हुआ, क्या रिज़ल्ट हुआ था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो चुके थे और ये प्रॉब्लम्स को ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ को फेस करना पड़ रहा था. Even though administering the tribal areas was tough, yet the British managed to gain access and established a control over the resources available in these areas. मीन्स जो भी ट्राइबल एरियाज था, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही टफ होने की वजह से जो ब्रिटिश रूलर्स वहाँ पे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पे थे, इन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया था, जो ट्राइबल एरिया था. ओके. और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे, ये भी पूरे कंट्रोल कर लिए थे. Their policy was to keep the tribals away from the mainstream so that they did not rebel against them. एंड उनकी पॉलिसी क्या थी यहाँ पे कि जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी यहाँ पे थी, इन्हें यहाँ से हटाना. ओके. लॉस ऑफ पावर. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर लॉस ऑफ पावर. The tribal chiefs were quite powerful in the pre-colonial period. and जो ट्राइबल चिफ्स थे, मीन्स हेड थे, ये बहुत ही पावरफुल थे in the pre-colonial period. means before British period, there were these chiefs were very powerful. They enjoyed economic power as well as the authority to frame laws related to lands, tribes and forest. और ये जो भी चिप्स यहाँ पे थे, हेड पर्सन यहाँ पे थे, ट्राइबल पर्सन्स, इन्हें बहुत सारे इकोनॉमिक पावर थे, उसके साथ अथॉरिटीज़ थी, जो भी लॉज वहाँ पे रहते थे रिलेटेड टू द लैंड्स, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट. ये लॉज फॉर्म करने के राइट्स भी, अथॉरिटीज़ भी यहाँ पे थी. ओके. मीन्स अधिकार भी उन्हें यहाँ पे थे, ये सभी लॉज फॉर्म करने के. सम ट्राइब्स सच एज भील्स ऑफ सदर्न गुजरात कलेक्टेड टैक्सेस. और कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जैसे भील्स ऑफ सदर्न गुजरात, ये टैक्स कलेक्ट करते थे. दे ऑल्सो अलाउड ग्रेसिंग ऑफ कैटल्स बाय बंजाराज ऑन देयर लैंड. और जो बंजारा कम्युनिटी थी, उन्हें अपने जो कैटल्स थे, ये ग्रेसिंग के लिए अलाउड किया करते थे उनके लैंड पे. ओके. विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, दिस ट्राइबल चिफ्स लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द कॉलोनियल रूलर्स. और जैसे ही ब्रिटिश एंटर हुए इंडिया में, वैसे ही ये जो भी चीफ थे, ट्राइबल चीफ, इनके जो पावर थे ये यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे. एंड उन्हें जो भी ट्रिब्यूट था ये पे करना पड़ता था कॉलोनियल रूलर्स को, मीन्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स को. ओके. ट्रिब्यूट्स मीन्स लाइक अ टैक्स, ये एक अमाउंट रहता है, दैट इज़ अ ट्रिब्यूट. ओके. तो ये ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ रहा था.
British laws were imposed on them and they lost their traditional forest rights. And British applied their policies, applied their rules, applied their laws on these chief tribal chiefs, on tribal communities also, and these tribal chiefs lost their ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स. जो भी उनके फॉरेस्ट राइट्स थे ये यहाँ पे उनके ख़त्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश लॉज. ओके. देन देर इज़ वंडरफुल टू नो Mahashweta Devi has been greatly involved with the tribal communities within India. She is a renowned Bengali writer. ये कौन थी? Bengali writer. Okay. She is a long time champion of the political, social and economic advancement of these communities. She has written many stories on the plight and exploitation of tribals. और ये जो महाश्वेता देवी यहाँ पे है, इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ यहाँ पे लिखी है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हियर ट्राइबल्स डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड. द कंपनी फोर्सफुली टूक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द ट्राइबल लैंड. और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपने इंडिया में थी, ये इन्होंने फोर्सफुली जो ट्राइबल लैंड थी ये फोर्सफुली छीन ली थी. अल्टीमेटली दिस लैंडलेस ट्राइबल्स बिकेम वेज लेबर्स एंड वर कोर्स्ड टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स. और अब यहाँ पे ये जो ट्राइबल्स थे जिनके पास लैंड थी वो फोर्सफुली छीन ली गई थी. उसकी वजह से ट्राइबल्स लैंडलेस बन चुके थे और ये अब लेबर्स बन चुके थे. The low wages and the loss of traditional land rights made them unhappy. और जो भी wages वहाँ पे उन्हें मिलते थे, wages means earning, जो दिन भर का अगर वर्क किया जाता है तो उसके बदले कुछ पेमेंट दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, उसे हम बोलेंगे वेजेस. तो ये जो वेजेस था ये बहुत ही कम था वहाँ पे. एंड उनके जो भी ट्रेडिशनल लैंड राइट्स थे ये भी ख़त्म हो चुके थे. उसकी वजह से उनका जो लाइफ था बहुत ही दुखी बन चुका था, अनहैप्पी बन चुका था. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू सेटल्ड एग्रीकल्चर. एंड देयर वर शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफ ट्राइबल. ओके. शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में हमने पढ़ा. जूम कल्टिवेशन कि वो एक जगह पे एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे करते थे, दैट इज़ कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो अब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन से सेटल्ड एग्रीकल्चर हो चुका था. मीन्स एक ही जगह पे उन्हें फार्मिंग करनी पड़ रही थी. ओके. द ब्रिटिशर्स wanted the nomadic groups to settle down as it would then be easier to monitor and administer them. एंड ये जो ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, ब्रिटिशों को जो नोमैडिक ग्रुप्स थे इंडिया के, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते थे फॉर अर्निंग. ओके. तो इन्हें अब ये सेटल करना चाहते थे. फॉर व्हाट? ईजियर टू मॉनिटर मीन्स जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था वो इजी करने के लिए इन्हें ये सेटल करना चाहते थे. फॉर दिस दे इंट्रोड्यूस्ड अ लैंड सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिशर्स मेजर द लैंड एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू पेएबल टू द स्टेट. एंड उन्होंने क्या किया इन्हें सेटल करने के लिए कि लैंड सेटलमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लैंड सेटलमेंट जो भी लैंड थी ये मेजर की गई एंड उस पर फिक्स्ड रेवेन्यू लगा दिया. सम ट्राइबल्स वर डिक्लेयर्ड एज अ लैंड ओनर्स एंड अदर्स एज अ टेनेंट. कुछ ट्राइबल्स को लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया और कुछ टेनेंट्स.
टेनेंट मीन्स दूसरे की लैंड किराए पे लेके वो कल्टीवेट करना, दैट इज कॉल्ड द टेनेंट. ओके. द टेनेंट्स पेड रेंट टू द लैंड ओनर्स, और टेनेंट को लैंड ओनर्स को पे करना पड़ता था. वाइल द लैंड ओनर्स पेड रेवेन्यू टू द स्टेट, और जो लैंड ओनर्स थे वो रेवेन्यू स्टेट को पे करते थे. ओके. सेटल्ड एग्रीकल्चर वॉज डिफ़िकल्ट, और जो सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था. टू प्रैक्टिस इन रीजन वेयर वाटर वॉज स्कार्स एंड सॉइल वॉज ड्राई, जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज था और जो सॉइल थी वो ड्राई थी. यहाँ ऐसे प्लेसेस पे सेटल्ड एग्रीकल्चर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था. नेवरथलेस, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड protest in many areas such as the northeast, the Britishers were compelled to allow the tribals to practice shifting cultivation. और ये जो भी सेटल्ड कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, अगेंस्ट जाना. ओके. तो उसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने कुछ जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलाउड कर दिया. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर हाई रेवेन्यू डिमांड. All tribal groups were not deprived of their land. Some groups were permitted to retain their land on the condition that they would pay revenue to the company officials. एंड कुछ ग्रुप्स ऐसे थे कि उन्हें परमिशन दे दी गई थी उनकी लैंड कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन उसके बदले में उन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ता था कंपनी ऑफिशियल्स को. हाउएवर द रेवेन्यू फिक्स्ड वाज वेरी हाई, जो भी रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स किया था इट वाज वेरी हाई एंड वाज आल्सो कलेक्टेड वेरी स्ट्रिक्टली, और जो भी कलेक्ट किया जाता था वो भी बहुत ही स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता था. On non-payment of revenue, tribals were often evicted of their land. And अगर रेवेन्यू पे नहीं किया जाता था तो वहाँ पे ट्राइबल्स की लैंड छीन ली जाती थी. Moreover, in order to pay revenue, the tribals took loans from money lenders at high rate of interest. और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स टैक्स पे करने के लिए लोन लिया करते थे, और जो भी लोन था ये भी बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था. मीन्स उनका जो भी इंटरेस्ट रहता था वो बहुत ही हाई रहता था. और ये लोन किससे लिया करते थे? मनी लेंडर्स से. व्हेन दे वर अनेबल टू पे बैक द लोन्स, द मनी लेंडर्स टूक अवे द कैटल्स, कार्ट एंड इवन लैंड. अगर ये जो लोन लिया करते थे ये अगर पे नहीं कर पाते तो ये जो मनी लेंडर्स थे ये इनके कैटल्स छीन लिया करते थे, उनके कार्ट छीन लिया करते थे, इवन उनकी लैंड भी यहाँ पे छीनी जाती थी. एज अ रिजल्ट लैंडलेस ट्राइबल्स वर पुश्ड इनटू फोर्स्ड लेबर्स और बेद बेगरी, दैट इज़ लेबर विदाउट पे. एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो लैंडलेस ट्राइबल्स थे जिनके पास लैंड नहीं रहती थी ये लेबर बन चुके, और कुछ लोगों को तो विदाउट पे वर्क करना पड़ता था, उसे हम बोलेंगे बेद बेगरी. ओके. नाउ देयर आर MCQs. वी हैव टू सॉल्व these MCQs. फर्स्ट, लैंडलेस ट्राइबल्स compelled to do forced labor were called. There are three options. A. बेद बेगरी, नौकरी, साकरी. A option is the answer here. बेद बेगरी. ये जो सिस्टम थी, जो लैंडलेस ट्राइबल्स थे इन्हें फोर्स किया जाता था वर्क करने के लिए विदाउट पेमेंट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द बेद बेगरी. ए ऑप्शन इज आंसर हियर. देन सेकेंड, द टर्म आदिवासी मीन्स देर आर अगेन थ्री ऑप्शंस. ए. अमेरिकन सिटीजन्स. बी. ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया. देन सी. डुप्लीकेट इनहैबिटेंट्स. बी ऑप्शन इज आंसर हियर. ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो आदिवासी है
ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, अपने इंडिया के ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं. ओके. Now today's topic is completed here. You have to read the lessons and you should understand it. Okay. And you should write the words and their meanings in your notebook before the question and answers of this lesson. Which words? These words are given in the beginning of this lesson. Okay. On page number 32. Have a good day.